Good morning, children. Welcome to the next class for accountancy. Children, till yesterday, we learned about the rules of debit and credit. That is, what are the rules for debiting certain accounts and what are the rules for crediting certain accounts. There are two approaches for crediting the accounts. There are two approaches for recording the transaction. One is the modern approach, which is known as the American approach, and the second one is the traditional approach, which is also known as the British approach of recording the transaction. What was there in modern approach? In modern approach, the whole accounts is divided into 5 categories: assets, liabilities, capital, incomes and expenses, and the rules are decided as per the increase and decrease in these transactions. अब इसके बाद जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें the accounts are divided into 3 parts. Basically they are divided into 2. Personal and impersonal, and impersonal are further divided into 3 categories, that is the real account and the nominal account. Increase decrease के basis पर in modern approach what was there? If assets increase it is debited, if they decrease it is credited. If liability increase they are credited, if liability decrease they are debited. Then what was there? If capital increases it is credited, if capital decreases it is debited. Then income same as per capital, if income increases credit, if income decreases debit. Then and the last, expenses were there. What about expenses? If expenses increases then they are debited, and if expenses decreases they are credited. Then in traditional approach there were 3 accounts, basically personal, real and nominal. What was the rule for the personal account? Personal accounts are those accounts which are related to a person. The rule was debit the receiver, credit the giver. Whosoever receives anything from the business is debited, and whosoever gives anything to the business is credited. All persons, all organizations accounts, all firms account, all representatives accounts are the personal accounts. Then real accounts, all assets account are real accounts, and the rule was all debit what comes in and credit what goes out. Whatsoever will come in the business is debited, and whatsoever will goes out from the business is credited. Then the nominal accounts were all the expenses and losses and all the incomes and gains are included in nominal accounts, and the rule was debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. So these were this was the last topic which we dealt with. Now today we will be beginning with the next topic, that is the origin of transactions, the source documents. कि कंपनी जो रिकॉर्डिंग करती है उसका प्रूफ क्या होता है, वो कहाँ से रिकॉर्डिंग करती है. एक बिजनेसमैन का माइंड कंप्यूटर नहीं होता कि उसको सब कुछ याद रहे. वो क्या करता है, सब कुछ एक जगह पर रफ में लिख लेता है. लाइक अगर उसने किसी को सेल किया है तो जब सेल किया उसने तो उसको कहीं एक जगह पर रिकॉर्ड कर लिया, उसने उसको एक जगह पर रिकॉर्ड कर लिया, और जब वो अकाउंटिंग करेगा तो उस डॉक्यूमेंट से वो क्या कर लेगा, उस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कर लेगा. तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको हम ओरिजिन बोलते हैं ट्रांजैक्शन का, कि यहाँ से ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग का ओरिजिन होता है. ट्रांजैक्शन का ओरिजिन नहीं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ओरिजिन होता है. तो सोर्स मीन सबसे पहले जहाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं. और कभी भी जब कभी कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पर आप इनको प्रेजेंट कर सकते हो. दीज कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग एनीथिंग विद एनी पार्टी. So there are different types of source documents. The very first is the cash memo. What is a cash memo, children? Cash memo नाम से ही पता चल रहा है, जो कैश के लिए मेमो बनता है उसको कैश मेमो कहते हैं. लाइक मैंने सेल किया, ओके, एंड वो सेल्स जो थी वो कैश में थी. इट कैन बी ऑन क्रेडिट ऑल्सो एंड इट कैन बी इन कैश ऑल्सो. 2 तरीके से होता है, कैश और क्रेडिट. जब मैंने कैश में सेल्स किया तो मैं उसको कहीं ना कहीं तो आई विल रिकॉर्ड इट. तो वेयर आई विल रिकॉर्ड इट, आई विल रिकॉर्ड इट इन द कैश मेमो. में एक जगह पर लिखूंगी एंड दैट इज कैश मेमो. उसमें क्या होगा, जितनी क्वांटिटी मैंने सेल की है, जिस रेट से मैंने सेल किया है, और टोटल अमाउंट जितना मैंने सेल किया है वो लिखते हैं. तो which transactions are recorded in cash memo? Those transactions are recorded in cash memo. जब हम कैश में सेल्स करते हैं तो उनको हम सबसे पहले कैश मेमो में लिखते हैं. डुप्लीकेट कॉपी में बनता है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी आपके पास रह जाती है, और इसका ओरिजिनल जो कॉपी होता है वो आप किसको दे देते हो, परचेजर को दे देते हो. तो कैश मेमो में हम कैश सेल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं. देन द नेक्स्ट इज द इनवॉइस और बिल.
आप इनवॉइस कब बनाओगे या बिल कब बनाओगे? जब आप क्रेडिट पे सेल करोगे तो आप उसको कैश मेमो में नहीं लिखोगे. वेयर यू विल राइट इट? यू विल जनरेट अ इनवॉइस और यू विल जनरेट अ बिल. तो whenever the sales is in cash, it is recorded in cash memo, it is written in cash memo, and whenever the sales is in credit, then it is written in the invoice or the bill. तो जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो हम उसको इनवॉइस में या बिल में लिखते हैं, और जब हम कैश में सेल करते हैं तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? कैश मेमो में लिखते हैं. मैंने अपनी किसी पार्टी को, रिटेलर को सेल किया है, और कभी कभी मैंने कैश में सेल करते हैं. तो जब हम कैश में सेल करेंगे, बीइंग अ बिजनेसमैन, मेरे पास दोनों बुक्स होंगी, मेरे पास इनवॉइस बुक भी होगी और मेरे पास कैश मेमो की बुक भी होगी. जब मैं कैश में दूंगी तो मैं कैश मेमो में लिखूंगी, और जब मैं क्रेडिट पर सेल करूंगी तो आई विल राइट इट इन द इनवॉइस बुक और द बिल बुक. ठीक है, तब बिल जनरेट होता है. अब द थर्ड इज द रिसीट. रिसीट जो होती है वो आपकी इनवॉइस या बिल से रिलेटेड होती है. सपोज मैंने क्रेडिट पे सेल किया था एबीसी एंड कंपनी को या एबीसी लिमिटेड को फॉर 10,000 रुपीज. ओके, अब क्या किया, एबीसी एंड कंपनी ने मुझे थोड़े टाइम के बाद पेमेंट दिया. वो बिल तो जनरेट हो गया, वो बिल मेरा इनवॉइस में लिखा हुआ है, लेकिन जो उसने मुझे पैसा दिया है उसके लिए कैश मेमो में मैं एंट्री नहीं करूंगी. क्यों? क्योंकि वो कैश सेल्स नहीं है, सेल्स मेरी ऑलरेडी हो चुकी है. एक पिछला बिल से कुछ पैसा मेरे पास आ रहा है. तो व्हाट आई विल डू, जब ऐसा कुछ होता है, मेरे पास कैश आता है, तो उस कैश के लिए मुझे सामने वाली पार्टी को रिसीट देनी होती है, प्रूफ देना होता है कि मैंने आपसे इतना रिसीव किया. इन दैट केस जब हम कैश रिसीव करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? रिसीट कट करते हैं और हम अपनी रिसीट में लिखते हैं. ये भी डुप्लीकेट में बनता है चिल्ड्रन. इसका जो ओरिजिनल होता है वो आप दे देते हो जिसने आपको कैश पे किया है, और डुप्लीकेट कॉपी इसकी आपके पास रह जाती है फॉर फर्दर रेफरेंसेस. तो 3 बुक्स आप बनाते हो. एक इनवॉइस बुक आपके पास होती है जिसमें आप क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस लिखते हो अपने. एक कैश मेमो बुक आपके पास होती है इन विच यू राइट योर कैश ट्रांजैक्शंस. एंड वन इज द रिसीट, जिसमें आपको कभी अगर कुछ रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश तो आप उसकी रसीद काट कर दे देते हो. रसीद काटना किससे होता है? रिसीट से. देन द नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज द डेबिट नोट. इट इज डेबिट नोट. अब ये डेबिट नोट क्या होता है? आपने सेल किया, ठीक है, एबीसी एंड कंपनी को. यू आर द सेलर एंड एबीसी कंपनी इज द परचेजर. व्हाट हैपेंड कि कुछ गड़बड़ हो गई, सर्टेन गड़बड़. नाउ व्हाट इज डेबिट नोट? अब डेबिट नोट क्या होता है? आपने किसी को सेल किया, एबीसी एंड कंपनी को आपने सेल किया है, एंड देयर इज सर्टेन डिफेक्ट इन द गुड्स. वो क्या करेगा? अपने पास तो रखेगा नहीं. That person, that company will return you back the goods. जब कोई भी परचेजर आपको गुड्स रिटर्न करता है, that means when the purchaser return goods to the seller back, he prepares a document, he prepares a note, and that note is known as debit note. That note is known as debit note. Is debit note में what is mentioned? The quantity which is returned is mentioned, and this note specifies that the seller's account or the supplier's account has been debited by this much amount in my books of accounts. तो जब परचेजर प्रिपेयर करता है रिटर्न करने के टाइम पे, then it is known as debit note. आप गए पैंटालून्स में, आपने चीज खरीदी, आपने घर गए, द साइज वॉज नॉट प्रॉपर या द कलर वॉज नॉट एप्रोप्रिएट, आपको पसंद नहीं आया, तो आप पैंटालून्स गए, आपने कहा कि मुझे चेंज करना है. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? वी विल नॉट रिफंड यू द मनी बैक. और अभी जो आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? आपको एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर करके देते हैं. आई विल इशू यू अ क्रेडिट नोट. एंड इस क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि आपका इतना अमाउंट मेरे पास डिपॉजिट है, आप जब भी कभी फ्यूचर में आओगे यू कैन हैव अ परचेज फॉर दिस मच अमाउंट. वो पैसा आपको वापस नहीं करते, वो क्या करते हैं? क्रेडिट नोट आपके फेवर में इश्यू कर देते हैं, एंड उस क्रेडिट नोट में मेंशन होता है कि दिस मच अमाउंट इज विद मी एंड यू कैन हैव अ परचेज विद दिस मच अमाउंट आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर यू फील लाइक, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 1.5 month. इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है? 1.5 month की होती है. तो क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सेलर टू द परचेजर, एंड इसका मतलब होता है कि मैंने आपके अकाउंट को इतने से अपने पास क्रेडिट करके रखा हुआ है, आपका अकाउंट इतने से मेरे पास क्रेडिट है. तो these are the 2 notes which are prepared in case of sales,
and purchases. Debit note is prepared by the purchaser and credit note is prepared by the seller. Then the next document is children pay-in slip. आप में से जो भी कोई बैंक में गया होगा उसने देखा होगा पे-इन स्लिप. Whenever you go to a bank for depositing the money, the time you want to deposit the money, you have to fill a slip which is known as pay-in slip. एक काउंटर फॉइल में स्लिप होती है, इस तरफ छोटा सा एक पेज होता है और इस तरफ पूरी डिटेल होती है. जो सेम डिटेल आप राइट हैंड साइड में भरते हो उस शीट के, उस स्लिप के, वही सेम डिटेल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में भरनी होती है. एंड दैट स्लिप इज नोन एज पे-इन स्लिप. इट इज यूज्ड to deposit the money in your account with the bank. अब इसमें आप क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखते हो? इसमें आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, देन कहाँ ब्रांच है, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है, योर मोबाइल नंबर, द सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर. जरूरी नहीं है कि मेरा अकाउंट है तो मैं ही जाऊँ डिपॉजिट करने. इफ एनी अदर पर्सन इज गोइंग, माई हस्बैंड इज गोइंग, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल पुट द सिग्नेचर ऑन द स्लिप. देन इसमें चेक की डिटेल, अगर आप चेक डिपॉजिट करते हो तो आपको चेक की डिटेल फिल करनी होती है कि चेक का क्या नंबर है, किस बैंक का चेक है. एंड इफ यू आर डिपॉजिटिंग द कैश, द नोट्स, देन यू हैव टू मेंशन द डिटेल फॉर द नोट्स ऑल्सो. तो पे-इन स्लिप क्या होता है? जब आप मनी डिपॉजिट करते हो तो आपको एक स्लिप फिल करनी पड़ती है, एंड दैट स्लिप इज नोन एज पे-इन स्लिप. देन द नेक्स्ट इज द चेक. चेक क्या होता है? चेक इज अ ऑर्डर इन राइटिंग फॉर पेइंग. चेक मेरे पास अगर है तो इसका मतलब ये क्या है? बैंक को ऑर्डर है कि आप मुझे इतने अमाउंट का पैसा दो. चेक कैन बी बियरर चेक, और उसमें जिसका नेम होता है उसके नाम से पैसा मिल जाता है. लाइक आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता है अकाउंट पे. इफ अकाउंट पे इज रिटन, इसका मतलब ये है कि केवल डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा, जिसके अकाउंट में चेक लगेगा उसके अकाउंट में. तो चेक क्या होता है? चेकबुक आपने सबने देखी होगी, उसमें अमाउंट लिखा होता है, जिसके नाम से अकाउंट होता है वो चेक इशू कर सकता है, उसके सिग्नेचर्स होते हैं. जिसके नाम पे इशू करना है उसका नाम लिखा जाता है. सेल्फ से भी आप मनी विड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक. तो दीज आर द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चिल्ड्रन विच हेल्प इन रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ अ फर्म. इनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस भी कहते हैं. द नेक्स्ट इज, यस चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज द वाउचर्स. वाउचर्स क्या होते हैं? जब आप हर ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, देन इट इज नोन एज वाउचर. वाउचर दो तरीके से बनते हैं, वन इज कैश वाउचर एंड द अदर वन इज नॉन कैश वाउचर. जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए कैश वाउचर बनाए जाते हैं, जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए नॉन कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं. लाइक डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो उसके लिए कौन सा वाउचर बनेगा? नॉन कैश वाउचर. ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जितने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, उन सब के लिए वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बेसिस पर रिकॉर्डिंग होती है. Now, cash vouchers are of two types. One is a debit voucher and the other one is the credit voucher. What are debit vouchers? Debit vouchers are prepared for the payments and the credit vouchers are prepared for the receipts. जो भी आप receive करते हो in cash, उसके लिए आप credit vouchers prepare करते हो, and whatsoever you pay for that, debit vouchers are prepared. तो चिल्ड्रन दिस इज द वाउचर. कि क्या होता है वाउचर? दो तरीके के होते हैं, वन इज द कैश एंड द अदर वन इज द क्रेडिट. Cash vouchers are prepared for the cash transactions. Credit vouchers, non-cash vouchers are prepared for the credit transactions. Cash are further categorized into two parts, debit vouchers and credit vouchers. Debit vouchers are prepared for the cash payments and credit vouchers are prepared for the cash receipts. Non-cash items में like it is depreciation, gain, loss, इन सब के लिए credit sales, credit purchase of goods, assets, investments, everything, कुछ भी अगर credit पर है तो उसके लिए आप कौन से vouchers prepare करते हो? Credit vouchers prepare करते हो. तो this is all about origin of transactions. Now the next topic is the basis for your accounting जो आप करोगे is journal entries. So this is all for the day. Thank you children. Thank you so much.